निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सब्जेक्ट इज पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश SECM 02 B.Ed स्पेशल एजुकेशन यूनिट 4 and we will be continuing the same topic which we have discussed in the earlier videos, that is instructional aids, and today we will be talking about smart boards, flannel boards, pictures, picture cutouts and charts. So, after watching this video, you will understand the importance of smart boards, flannel boards, etc. Then you will understand how flannel boards can be effectively used in classroom teaching. Then you will be able to know the use of picture cutouts in teaching learning process. Along with that, you will know how charts can be used in classroom teaching and use of universal design for learning. Along with that, definitely when you use this instructional material, it will develop interest in English language in classroom teaching. So, when you watch this video, you have to be very careful so that you can understand the importance of all these aids, smart board, flannel board, charts, etc. And in classroom teaching, when these flannel boards or smart boards or charts are used effectively, it definitely helps in students' learning outcomes, and if the subject is made interesting with the help of this instructional material, definitely students will develop interest in English language, and once they develop interest in English language, they will be more confident in speaking English. So, this is how we have to understand that how this instructional material are used in classroom teaching to make your classroom more effective and interactive. So, first we will be discussing about smart boards and flannel boards and its use in classroom teaching. So, I have mentioned the source also from where you can see many more smart boards and flannel boards examples also. So, we will start with smart boards, how smart boards can be used in educational purposes. So, first we will be talking about its benefits. So, it helps in interactive learning. Smart boards enable interactive lessons, engaging students and promoting active learning. When we want to have students to learn and understand the concept easily, promoting active learning an essential part in teaching learning process. Next come the multimedia integration. Integration means we have to integrate various teaching aids in classroom teaching. So, this is a very technical thing, and a teacher has to be comfortable in integrating all these multimedia aids. So, smart boards allow seamless integration of multimedia content, such as you can integrate videos, images or audio files in your teaching learning process in one class only. Then collaboration, in earlier videos also we have talked about this collaboration. It means we are not using any single instructional material in the classroom, but we will be using clusters of teaching aids in the classroom to facilitate collaboration among students and teachers by enhancing teamwork and communication skills. So, you can collaborate various teaching aids
as well as you can collaborate teamwork also in the classroom, and teacher and taught can also have a teamwork which helps in enhancing learning, as well as a feeling of teamwork is also developed. Next comes the personalized learning. So smart boards can be used to create customized lessons tailored to individual students needs. हम हर वीडियो में इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल एड्स जो हैं स्टूडेंट्स की विभिन्न जो छात्र डिफरेंट स्टाइल के छात्र होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में यह सक्षम होता है. देन एजुकेशनल एप्लीकेशन. टीचिंग एड्स के नाम पता होना और उनको एजुकेशनल पर्पस में उनका किस तरह से प्रयोग किया जाना है इस बारे में भी टीचर को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है. तभी जो है ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को वाइजली टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर पाएगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लेसन प्लानिंग. सो टीचर्स कैन क्रिएट इंटरैक्टिव लेसन प्लान्स इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट एंड एक्टिविटीज. सो इसका मतलब क्या है, जब टीचर अपना लेसन प्लान करता है तभी उनको इस बात को डिसाइड कर लेना है कि आज की इस 40 मिनट की क्लास में या इस वीडियो में हम किन किन इंस्ट्रक्शनल एड्स को क्लास में या लेसन प्लान में ऐड करने वाले हैं. देन कम्स द प्रेजेंटेशन. स्मार्ट बोर्ड्स enables engaging presentations allowing teachers to एनोटेट एंड हाईलाइट की पॉइंट्स. की पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो उसमें जो है ये स्मार्ट बोर्ड बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके साथ साथ जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि इन एड्स के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ग्रुप वर्क कैन बी इनिशिएटेड. खास तौर से आप देखोगे आप ऐसी ग्रुप एक्टिविटी को क्लास में करवाएं जिसकी वजह से इट विल प्रमोट कोलैबोरेशन. और इसके साथ साथ क्या होता है, जब बच्चा टीम वर्क में काम करता है तो टीचर एक मोटिवेटर या फिर टॉर्च बेयरर के रूप में क्लास में उपलब्ध रहता है. परंतु जब कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर में छात्र एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उनके समक्ष जो भी छोटी मोटी समस्या आती है वे उस समस्या के समाधान को खोजने में भी स्वयं सक्षम हो जाते हैं. देन कम्स द असेसमेंट. Smart boards can be used to administer interactive quizzes and assessment. इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट बोर्ड्स को वेरियस तरीके से हम कहाँ कहाँ कैसे उसके एजुकेशनल एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके उदाहरण जो है कुछ दिए गए हैं. तो लेसन प्लानिंग में कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, ग्रुप वर्क में कर सकते हैं, असेसमेंट या इवैल्यूएशन के समय में भी आप स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो स्मार्ट बोर्ड को इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए इसके बारे में हमको बात करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली बात आती है कि ट्रेनिंग. सो इन जो टीचिंग एड्स होते हैं या इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं इनके प्रॉपर यूज़ के लिए टीचर को एक अच्छी ट्रेनिंग यदि दे दी जाती है तो ये इसका ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उपयोग कर पाएंगे. नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन. डेवलप हाई क्वालिटी रिलेवेंट कंटेंट दैट अलाइंस विथ करिकुलम गोल्स. इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव यूज़ करने के लिए हमको इसके कंटेंट को भी क्रिएट करना चाहिए जो कि हाई क्वालिटी का हो और इसके साथ साथ जो हमारे करिकुलम के एजुकेशनल गोल्स हैं उनके साथ मैच करता हुआ टीचर भी जो है आफ्टर ट्रेनिंग जो है ये ऐसा हाई क्वालिटी का कंटेंट स्वयं भी तैयार कर सकते हैं. थर्ड कम्स द इंटीग्रेशन. Integrate smart boards into existing curricula rather than using them as a stand alone tool. कहने का मतलब क्या है, इन स्मार्ट बोर्ड्स को आपको इंटीग्रेट करना है करिकुलम के साथ. अलग से इन स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल करने की बजाय आपका जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसमें जो है कैसे इफेक्टिवली इन स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हमको टीचर को सिखाना होगा और वह टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है. फिर आता है फीडबैक. चूँकि हम हर बार बात
कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल एड का एक एडवांटेज ये है कि इसमें हमको फीडबैक मिलता है, तो इसमें और अधिक सुधार करने की गुंजाइश होती है. सो इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स फीडबैक टू इम्प्रूव स्मार्ट बोर्ड यूसेज एंड इफेक्टिवनेस. इसका मतलब क्या है, जब आपको लगातार फीडबैक मिलेगा तो आप स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, वो फीडबैक की मदद से ही आपके लिए संभव होगा. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल चैलेंजेस. कहने का तात्पर्य क्या है, जो हम इंस्ट्रक्शनल एड्स को यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं. सबसे पहला आता है टेक्निकल इश्यूज. इसीलिए हमने पिछले स्लाइड में टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात की थी, क्योंकि किसी भी तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपकी क्लासरूम टीचिंग को डिसरप्ट कर सकती है. तो हमेशा जो है यू हैव टू एंश्योर दैट देयर इज़ अ टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल, क्योंकि एक टीचर जो है टेक्निकली हर इश्यू को सॉल्व कर पाएगा ये जरूरी नहीं है. इसीलिए जो है जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं या आप स्टूडेंट के साथ काम करते हैं तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट कम दी कॉस्ट. तो ये जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं या वेरियस सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कंसिडर बजट कॉन्स्टेंट्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग. इसका मतलब क्या है कि जब आप इन चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो या वीडियोज़ हो या फिर आपको हाईटेक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या हम उस कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं. थर्ड कम्स द टीचर कंफर्ट. Ensure teachers feel comfortable using smart boards to maximize effectiveness. ट्रेडिशनल टीचिंग के समय जो है इस तरह की टेक्नोलॉजिकली असिस्टेंट आपको नहीं मिलता था, ना आपके पास इतने सारे जो है एड्स उपलब्ध थे. सो किसी भी टीचिंग एड को या इंस्ट्रक्शनल एड को यूज़ करने के पहले वी हैव टू एंश्योर दैट teachers are comfortable in using such kind of aids. Then how to implement smart boards in specific subject. पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, खास तौर से जो इंटरैक्टिव ग्राफ्स होते हैं. सो स्मार्ट बोर्ड्स कैन बी वेरी यूजफुल इन showing graphs, allowing students to explore mathematical concept. सो ये स्मार्ट बोर्ड जो है मैथमेटिक्स में इंटरैक्टिव ग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ज्योमेट्री के टूल्स के रूप में भी स्मार्ट बोर्ड को बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है शेप्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, उनमें स्मार्ट बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सकता है. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. यूज स्मार्ट बोर्ड्स टू फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़. सो हम कोलैबोरेशन की बात हम हमेशा से करते रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वी हैव टू एंश्योर कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑल्सो. सो whenever there is a teamwork, students can solve their own problem. सो आप देखोगे कि जब आप इन एड्स का इस्तेमाल करते हैं सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज़ भी टीम वर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. सो you will see that this is the smart board where teacher along with the student they are trying to use the smart boards. Then in science, how can you use this smart boards? So interactive simulations, create interactive simulations to model साइंटिफिक फिनोमेना सच एज केमिकल रिएक्शंस हैं या फिजिकल प्रोसेसेस हैं, उसमें आप विज्ञान में या साइंस में इसका उपयोग कर सकते हैं. देन वर्चुअल लैब्स की बात, मेरे ख्याल से आप सभी इस शब्द से भी फेमिलियर होंगे कि हम वर्चुअल लैब्स की बात कर रहे हैं. सो कंडक्ट वर्चुअल लैब्स अलाउइंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस. सो मेडिकल फील्ड में तो आजकल इतने अधिक इनोवेशंस हो गए हैं
कि विदेशों में रहकर भी डॉक्टर्स जो हैं ये बता देते हैं कि बड़े कॉम्प्लेक्स सर्जरीज वगैरह कैसे की जाती हैं, ये भी विजुअल लैब्स के माध्यम से संभव हो जाता है। देन कम्स द डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस। सो यूज स्मार्ट बोर्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। सो हम देखेंगे विज्ञान है, गणित है या दूसरे अन्य कई विषय हैं जिसमें स्मार्ट बोर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण एड के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। देन लैंग्वेज और आर्ट्स में भी आप देखोगे कि स्मार्ट बोर्ड कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जैसे इंटरैक्टिव रीडिंग है, यूज स्मार्ट बोर्ड्स टू क्रिएट इंटरैक्टिव रीडिंग एक्सपीरियंसेस, हाईलाइटिंग लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स। सो लैंग्वेज में भी आप देखोगे कि स्मार्ट बोर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ साथ राइटिंग वर्कशॉप्स, इट फैसिलिटेट्स राइटिंग वर्कशॉप्स अलाउइंग स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट एंड रिसीव फीडबैक्स। सो राइटिंग वर्कशॉप्स में आपको लिखने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी में यूटिलाइज स्मार्ट बोर्ड्स to teach grammar and vocabulary concepts and interactively। interactive बहुत important part होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। हर विषय में जितना अधिक इंटरैक्शन छात्र और शिक्षक के बीच में होगा, आप ये देखेंगे उनकी लर्निंग उतनी ही तेजी से होगी और वही इफेक्टिव लर्निंग आप कह सकते हैं। फिर इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड आर्ट ऑल्सो यू कैन यूज स्मार्ट बोर्ड्स। सो स्मार्ट बोर्ड्स टू क्रिएट इंटरैक्टिव टाइमलाइंस हैं, मैप्स हैं, हिस्टोरिकल सिमुलेशंस हैं, इन सब में भी जो है आप स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्मार्ट बोर्ड्स को आप देखोगे कि क्रिएट डिजिटल आर्ट है, एक्सप्लोर आर्ट हिस्ट्री है, और या फिर एनालाइज आर्टिस्टिक टेक्निक्स जो होती हैं उनको यूज़ करने में भी जो है ये स्मार्ट बोर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप देखोगे कि इसका बेहतर से बेहतर उपयोग यदि आपको देखना है तो जैसा कि हमने पिछली कुछ स्लाइड में भी इस बारे में बात की थी कि अलाइन विथ करिकुलम। सो इन स्मार्ट बोर्ड एक्टिविटीज़ को आपके करिकुलम गोल्स के साथ आप इसको यदि अलाइन कर लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इस बात को रिपीट करना होगा कि स्मार्ट बोर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं या इंस्ट्रक्शनल एड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि उनकी एक तो प्रमोटिंग एंगेजमेंट हो जाता है। यदि क्लास में बच्चा लगातार उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। देन when the teacher is using smart board, it helps in monitoring progress. So monitoring students progress and adjust smart board activities accordingly। इसका मतलब क्या है, लगातार फीडबैक मिलता रहता है, छात्र कितना सीख रहे हैं इसको भी टीचर मॉनिटर कर सकता है और आवश्यकता अनुसार जो है टीचर जो है बच्चों की प्रोग्रेस के अनुसार इस स्मार्ट बोर्ड की एक्टिविटीज़ को वो छात्रों के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलाइन भी कर सकता है। सो ये आप देखिए कि ये एक स्मार्ट बोर्ड का ही आपको उदाहरण है। बच्चा जब उसको छू के देखता है, इसमें विभिन्न जो वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको दिखाया जा रहा है। सो जब छोटे बच्चों की क्लास में आप देखोगे विभिन्न रंग बिरंगी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं तो छात्रों का ध्यान जो है इन विषयों पर ज़्यादा केंद्रित होता है। इसमें हमने सोर्स भी दिया हुआ है, इस तरह के कई चित्र आपको इस सोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए उपलब्ध होंगे। अब अपन बात करते हैं फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड बेसिकली व्हाट इट इज़? It is a visual aid used in teaching, particularly in early childhood education, to present information, engage students through storytelling and hands-on activities. Then it consists of board covered in a flannel or felt onto which cutout shapes, pictures and other materials can be attached and rearranged. इसका मतलब क्या है कि चित्र बनाओ, काटो विभिन्न शेप्स में और इन कटआउट्स या शेप को जो है आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। दिस अलाउज फॉर डायनेमिक प्रेजेंटेशंस, इलस्ट्रेटिंग कॉन्सेप्ट्स
एंड फैसिलिटेटिंग इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। सो इसका मतलब क्या है, छात्रों के माध्यम से आप पिक्चर बनवाइए, शेप्स कटवाइए और उसके बाद आप जब उनको इसमें फ्लैनल बोर्ड पे आप अटैच करते हैं तो वो छात्रों की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। तो अब हम ये बात करेंगे हाउ फ्लैनल बोर्ड्स आर यूज्ड इन टीचिंग। टीचिंग में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि विजुअल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि बार बार जो टीचर यदि नोट्स देता है या सिर्फ मुंह से बोलता है तो बच्चों का रिटेंशन नहीं होता है, इसलिए हमको मल्टी सेंसरी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्लैनल बोर्ड जो है आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन का बहुत अधिक मौका देता है। So it provides a visual way to present information, making it easier for student to understand and retain concept. फिर story telling की बात आती है, they are excellent for story telling, allowing teachers to use cutouts to illustrate character and events, enhancing engagement and comprehension. मान लीजिए स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं तो आप किसी कैरेक्टर को शो करने के लिए आप जो है इन कटआउट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग में ये फ्लैनल बोर्ड्स का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये देखिए आपके पास ये कटआउट्स लगाकर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, टीचर एंड टॉट दोनों मिलकर जो है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लर्निंग अपने आप में बहुत जो है लर्निंग एनहांसमेंट के साथ साथ बच्चे मोटिवेटेड भी रहते हैं और उनकी लर्निंग जो है एंजॉयबल भी होती है, जिसकी वजह से वो तेजी से सीखने की तरफ बढ़ने लगते हैं। एडेप्टेबिलिटी, सो फ्लैनल बोर्ड्स कैन बी एडेप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एज ग्रुप्स, मेकिंग देम अ वर्सटाइल टीचिंग टूल। इसका मतलब क्या है कि ये फ्लैनल बोर्ड खाली छोटी कक्षाओं के लिए नहीं, विभिन्न कक्षाओं के और हर एज ग्रुप के छात्रों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, बहुत उतना महंगा भी नहीं है स्मार्ट बोर्ड की तरह और ये लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है एंड इट कैन बी यूज रिपीटेडली। बार बार आप इसका इस्तेमाल, जो कटआउट्स हैं आप उसको उठाकर रख लीजिए और फिर एक नया बनाकर दोबारा उसको यूज एंड रीयूज किया जा सकता है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी फ्रेंडली टीचिंग रिसोर्स। देन क्रिएटिविटी, जैसा कि हमने पिछले उदाहरणों में बात की है, कटआउट्स हैं, स्टोरी टेलिंग में विभिन्न उनके कैरेक्टर्स हैं। सो फ्लैनल बोर्ड्स अलाउड टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज टीचर्स कैन डिजाइन एंड कस्टमाइज कटआउट टू सूट दैट स्पेसिफिक लेसन। सो लेसन के ऑब्जेक्टिव के अनुसार ये टीचर की क्रिएटिविटी के साथ साथ छात्रों की भी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, उनको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस देता है और ये टीचर जो है उसको डिज़ाइन कर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वेरियस शेप्स हैं या कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं, इन सब में उसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इट हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। जब बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, वो स्वयं करके सीखते हैं, तो आप देखेंगे कि फ्लैनल बोर्ड्स कैन बी यूज टू टीच वेरियस कॉन्सेप्ट सच एज लेटर रिकग्निशन है, नंबर सीक्वेंसिंग है और रिलेशनशिप है, अरेंजिंग कटआउट्स हैं इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ये सब जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में ये फ्लैनल बोर्ड्स के माध्यम से छात्रों को बहुत अधिक मदद मिलती है। देन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन। सो टीचर जो है अपने कटआउट्स को स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसमें अटैच करके जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ब्रेक करके इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से कठिन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकती है। फिर डेफिनेटली इंटरैक्टिव लर्निंग तो होता है, इसमें छात्र और टीचर दोनों मिलजुल कर जो है इस काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो आप देखेंगे इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय अरेंजिंग द कटआउट्स देमसेल्व्स, फॉस्टरिंग अ हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर आप देखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। चूंकि हम पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू ensure that flannel boards or how it can be used in language development. So in language arts, flannel boards can be used to teach vocabulary है, sentence structures हैं and story telling skills हैं। So जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि आप स्टोरी टेलिंग में विभिन्न कैरेक्टर के चित्र बनाकर
उनके आगे आप उनके डायलॉग्स को डिफरेंट कलर शीट में लिखकर आप कर सकते हैं, और वही स्टोरी टेलिंग के कैरेक्टर जो आप फ्लैनल बोर्ड में दिखा रहे हैं वही कैरेक्टर आप बच्चों को भी कर सकते हैं, जिससे बच्चा वो डायलॉग को पढ़कर जो है विभिन्न कैरेक्टर को वह स्वयं निभाए। देन फाइन मोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिंग द कटआउट्स ऑन द फ्लैनल बोर्ड कैन हेल्प डेवलप फाइन मोटर स्किल्स इन यंग चिल्ड्रन। खासतौर से छोटे बच्चे जो हैं ये फ्लैनल बोर्ड्स में जब स्वयं काम करते हैं तो उनकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लैनल बोर्ड्स। सो जो इतना डिस्क्रिप्शन हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लैनल बोर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सबसे पहली बात होगी एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल अर्थात आप इसको उठाकर कहीं भी इजीली ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। एडॉप्टेबल है, दे कैन बी यूज इन डाइवर्स सेटिंग्स, क्लासरूम में यूज़ कर लो, लाइब्रेरी में यूज़ कर लो, आप घर में यूज़ करना चाहते हैं तो घर में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और रीयूजेबल है, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, मल्टीपल लेसन और एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जिसके फ़ायदे होते हैं उसका नुकसान भी होता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लैनल बोर्ड। सबसे पहली बात क्या है, प्रिपरेशन टाइम। क्योंकि ये जो कटआउट्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए मटेरियल लगता है, टाइम लगता है, तो ये कहा जाता है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। देन आर्टिस्टिक स्किल, डिजाइनिंग एंड कटिंग आउट विजुअली अपीलिंग मटेरियल में रिक्वायर आर्टिस्टिक स्किल। सही बात है, आपको डिफरेंट शेप्स काटने हैं, मान लीजिए ट्री है या फिर आपको डिफरेंट तरीके के जो कैरेक्टर है, ह्यूमन फिगर्स बनाना है, एनिमल्स को बनाना है, तो उसके लिए आपकी आर्टिस्टिक स्किल में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्लैनल बोर्ड का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। फिर आता है लिमिटेड स्पेस। चूँकि फ्लैनल बोर्ड की एक सीमा होती है, जिस तरह से चॉक बोर्ड की सीमा होती है उसी तरह से फ्लैनल बोर्ड में जब तक कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप इन कटआउट्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा लिमिटेड जो है इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है विच कैन बी डिस्प्लेड एट वन टाइम। फिर आता है स्टोरेज, सेम बात है, उसका जो स्क्रीन है उसका स्टोरेज का एक लिमिटेड स्पेस है। सो इसलिए जो है इसमें स्पेस की कमी आती है। Distraction, if not carefully managed, the cutouts and activities on the flannel board can be distracting for the student. इसका मतलब क्या है, 100% concentration कई बार छात्रों का इस एक्टिविटी में नहीं लगता है, वो डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। सो इट मे अफेक्ट देयर लर्निंग। ये आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये कटआउट्स हैं, इन कटआउट्स को किस तरह से, चूँकि ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं इसलिए ये बहुत इजीली अपने को दिखाई दे रहे हैं, पर जब आप इनको कटआउट बना के उसमें लगाएंगे तो ये हमारे को विजुअली आसानी से दिखाई देंगे, पर कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से इट कैन बी सिंप्लीफाइड मोर। और वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पिक्चर कटआउट्स हैं उसके लिए हमने कुछ सोर्सेज भी दिए हैं। हमने ओनली 2 एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन हियर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स अवेलेबल इन द रिसोर्स मेंशन्ड हियर। तो ये हैं कटआउट, देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको विभिन्न तरीके से दिखाया गया है। सो ये कटआउट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को मदद करने में आसान होता है। सो अब आप देखोगे कि ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर कटआउट्स हैं या जो चार्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स के रूप में आप कक्षा में जब उपयोग करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात है विजुअल लर्निंग, आपको आंखों के आगे दिखाई देता है। सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सो बहुत आसानी से आप कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। छात्रों का इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, जब लर्निंग फन लविंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, सो बच्चों का एंगेजमेंट ऑलरेडी इन विजुअल जो होते हैं वो बच्चों का अटेंशन तेज़ी से कैप्चर करते हैं। फिर आता है इम्प्रूव्ड कॉम्प्रीहेंशन, एंजॉयबल होगा, प्रमोटिंग एंगेजमेंट होगा, तो बच्चों के कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग तेज़ी से होती है और वो
कॉन्क्रीट जो आइडियाज़ होते हैं आप एक कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाई देते हैं तो छात्र इसको आसानी से समझ जाता है। टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स. So, in types of visual aids we will be talking about pictures, picture cutouts, charts, etc. So, pictures are photographs, illustrations or diagrams that convey information. Picture cutouts are cutout images or shapes used to illustrate concept or tell stories. Charts are basically graphic organizers, flow charts or diagrams that display a relationship between the ideas. Now, we will be talking about how to effectively use this instructional material. First thing is relevance. In the earlier slides, we have talked about while lesson planning only, a teacher has to decide what kind of instructional aid they will be using in the class. So, it has to be relevant and ensure visual aids are relevant to the lesson and it should support the learning objective of the lesson. Second comes the clear labeling. So, label various visual aids clearly, making it easy for students to understand. Third comes the integration. Integrate visual aids into lessons using them to reinforce key concepts. So, if a teacher is going to use various key points, it has to be integrated with the visual aids. Next comes the students' involvement. All these instructional aids are designed in such a way that student involvement is very much important and it encourages students to create their own visual aids promoting active learning. So, now we will be talking about few examples which can be used in various subjects. First is science. So, we all know that diagrams are very important point of science. So, illustrating scientific process such as photosynthesis or the water cycle etc., that can be very well explained with the help of instructional material. Next comes the language art, use pictures, cutouts to retell stories or illustrate literary devices. Third comes the mathematics. So, use charts to display mathematical relationships such as multiplication, tables or geometric shapes can also be explained with the help of this instructional material. So, by incorporating pictures, picture cutouts and charts into classroom teaching, education can create engaging, interactive learning and environment that supports students' understanding and achievement. So, the more students are involved in classroom teaching learning process, the more it is interactive teaching learning process, students will be able to learn more. So, at the last we can talk about that leveraging smart boards effectively, educators can create engaging interactive learning environment in the classroom and instructional materials play a vital role in enhancing teaching and learning experiences. From traditional materials like textbook, books and visual aids to modern technologies like smart boards, digital resources, instructional materials can engage students and promote understanding and support diverse learning needs, specifically when we talk of children with special needs. Instructional material can help them to learn much faster. Now, we will be talking about few review questions. There are two short questions and few more lengthy questions are also given. So, how can picture and picture cutouts be used to support learning in the classroom? And answer should discuss the use of visual aids to enhance understanding, engagement and retention. And second question is, what are some benefits of using charts in the classroom? In the review type of questions, we will be talking about essay type questions, discuss the importance of using visual aids such as pictures, picture cutouts and charts in classroom teaching, provide examples of how visual aids can be used to support learning in different subjects. Second question is, describe the role of visual aids in enhancing students' engagement and motivation in the classroom
provide examples of how pictures, picture cutouts and charts can be used to promote active learning. And next question is, discuss the benefits of using charts and diagrams to teach complex concepts in subjects like science and mathematics. How can teachers ensure that these visual aids are effective in promoting students' understanding? Then next question is, explain how pictures and pictures cutouts can be used to support language learning and literary development in the classroom. Provide examples of activities that teachers can use to integrate visual aids into language instruction. Then next question is, describe the importance of designing and using visual aids that are relevant, clear and concise. How can teachers ensure that visual aids are effective in supporting students' learning and achievement? Then next question is, discuss the potential challenges and limitations of using visual aids in the classroom and suggest strategies for overcoming these challenges. How can teachers ensure that visual aids are used in a way that supports diverse learning needs and styles? And in the last slides, some references are also provided through which, if you wish to have, you can increase your knowledge and study, get more information related to the topic. Namaskar, धन्यवाद.